السلام علیکم۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں سرخیوں سے۔ برقی معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ آندھرا حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف اسمبلی میں متفقہ قرارداد، کل جماعتی وفد مرکز کو روانہ کرنے کا تیقن۔ آئندہ 3 سال تک 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کی جائے گی، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا تیقن۔ حکومت 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کے لیے اراضی اور فنڈز کہاں سے لائے گی؟ اکبر اویسی کا سوال۔ شادی مبارک اسکیم پر شعور بیداری کے لیے مدد نامی ہیلپ لائن کا افتتاح۔ اور ونستھلی پورم میں مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون نے شرابی شوہر کا گلا گھونٹ دیا۔ اور اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ آندھرا پردیش تنظیم جدید بل کے تحت برقی معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ مسلسل کی جا رہی آندھرا حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور کی گئی۔ TRS کے رکن اسمبلی ای رویندر نے 344 رولز کے تحت آندھرا حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف حکومت کے اقدامات پر سوال اٹھائے، جس کے جواب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آندھرا پردیش حکومت کی جانب سے کی جا رہی تنظیم جدید بل کی مخالفت کے خلاف حکومت سخت اقدامات کر رہی ہے۔ صبح سے جاری مباحث میں وزیر اعلیٰ نے تیقن دیا کہ اس سلسلے میں بہت جلد کل جماعتی وفد کے ساتھ مرکز سے نمائندگی کی جائے گی۔ شام 4 بجے سے پھر مباحث کا آغاز ہوا۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے کہا کہ حکومت 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن اس کے لیے اراضی اور فنڈز کہاں سے لائے گی، جبکہ بجٹ میں صرف 1,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت جلد بازی میں قرارداد پیش کر رہی ہے، حالانکہ اس قرارداد میں کئی خامیاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کے لیے 6 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے، جبکہ 20,000 میگا واٹ برقی کے لیے 1.2 لاکھ کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے۔ اکبر اویسی نے کہا کہ بھوک اور پیاس آج لگی ہے، 5 سال کے بعد بریانی کھلانے کا کیا فائدہ۔ انہوں نے تلگو دیشم قائدین سے بھی اپیل کی کہ وہ اس مسئلے پر جوابی حملے کرنے کے بجائے اپنے قائد سے بات کریں۔ اس نئی ریاست کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ Creation of 1 megawatt power generation capacity would require 6 crores, sir, for 1 megawatt. For adding 20,000 megawatts as promised by the Honorable Chief Minister Mr. Chandrasekhar Rao Sahab, 20,000 megawatt capacity, the massive investment requirement would be 1.2 lakh crores. However, the government has provided only 1,000 crores for Telangana Genco in the current budget, sir. Fine, sir. That investment of which I am saying of 20,000 megawatts, the state government need not have to put the entire, because there are different agreements are there. But as far as BHEL is concerned, after the completion of that project, the BHEL would be handing over the entire power plant and the power project to the state government. For that, sir, if I am right, subject to correction, that would be 6,000 megawatts. 6,000 megawatts would be produced by BHEL. For 1 megawatt, 6 crores are required. That means 36,000 crores are required. 36,000 crores only for BHEL. So what is the provision made in the budget? And how are we going to do this? This is a major question which needs to be answered, sir. Sir, but also, most of the irrigational projects in Telangana are lift irrigation projects. Lift irrigation, I don't know whether this has been calculated or not. When the Honorable Chief Minister would give me a reply, I would like to also have an answer to this question of mine, sir. If I am wrong, again I am saying it is subject to correction, please correct me. Sir, most of the irrigation projects in Telangana are lift irrigation, which require as much as
7,150 megawatt power. The power demand in Telangana is expected to grow substantially with rapid industrialization, more consumption by farm sector and commercial and domestic consumers. Hence, even with the additional capacity of 20,000 megawatts would not be enough after 5 years. Is it right or wrong? And what is the plan that we have? What is the plan that we have? It's very important. We know this very well, sir. Please conclude, please. It is a new state which has come into emergence. And I know Mr. Chandrasekhar Rao Sahab is an achiever. He has achieved the state of Telangana. But at the same time, do not take me wrong. Do not judge me wrong. एक तहरीक चलाना अलग होता है. To have an agitation, to run an agitation, it is different. To run a government is also a different. And I am hopeful that कि जिस तरीके से आपने कामयाब तहरीक चलाई थी, एक कामयाब स्टेट भी आप चलाएंगे, मुझे यकीन है और उम्मीद करता हूं. और अगर कामयाब स्टेट चलाए तो मैं ये भी जरूर कहूंगा कि तेलंगाना स्टेट इज सपोज टू बिकम अ पावर सरप्लस स्टेट आफ्टर 5 years. ठीक है, आप एक ख्वाब हमको दिखा रहे हैं, हम आपके उस ख्वाब को देख रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि क्या ये ख्वाब हकीकत में तब्दील होगा या फिर ये ख्वाब टूट कर चुकनाचूर होगा. However, the state desperately needs power now. No one can deny this. The state desperately needs power now. So the promise of power supply after 5 years, आप फिर से कहूंगा, इसको गलत ना ले, लेकिन भूख आज लग रही है, प्यास आज है. आई एम थर्स्टी नाउ, आई एम हंग्री नाउ. आप ये बोलेंगे कि 5 बरस के बाद आई विल फीड यू बिरयानी, तो मैं बिरयानी 5 बरस के बाद नहीं साहब, मुझे सूखी रोटी कम से कम आज दे दीजिए. पावर इज रिक्वायर्ड नाउ. एंड आई होप दैट द गवर्नमेंट वुड टेक दिस सीरियस एंड ऑल्सो स्पेल आउट as to what we would do for the hunger and the thirst which is there in the people of state of Telangana and in particular the farmers of Telangana. In conclusion, we totally support the stand of Telangana government demanding its rightful share of power from the existing power projects and also the projects under construction. We will join the all-party delegation to Delhi. As the Chief Minister said, it is the responsibility of the central government to ensure that the provisions of AP Reorganization Act are followed in letter and spirit, sir. And also, sir, I would request my colleagues from Telugu Desam side to kindly go and pursue a leader who is also the Chief Minister of Andhra Pradesh. Rather than just criticizing each other will not help and solve the problem that the people of state of Telangana is facing today. Sir, it was an agitation initiated and started by Chandrasekhar Rao Sahab. Rest. After that, many followed. And it is the efforts of all, participation of all, that all were successful in achieving Telangana state. Please. ठीक है साहब, ठीक है. अगर वो क्रेडिट भी ठीक है, अगर आप वो क्रेडिट भी बाबू साहब को देना चाहते हैं तो दे दीजिए, उठकर बोल दीजिए बाबू साहब लाए तेलंगाना, कोई बात नहीं. बोल दीजिए, कोई बात नहीं. आप उठ के बोल दीजिए, आपके बाबू साहब खुश होंगे आपके स्टेटमेंट से कि हाँ, इनकी वजह से तेलंगाना आया. बोल दीजिए. अगर कांग्रेस भी कहना चाहती है कि उनकी वजह से आया है तो ठीक है, बोल दीजिए आप, आपकी वजह से. मैं इस बात पे बहस करना नहीं चाहता. मेरी इस बात को मैं समझाना चाहता हूं सारे ऐवान को कि एक नया स्टेट वजूद में आया है और नए स्टेट के वजूद में आने के बाद कई मसाइल है, कई इश्यूज हैं और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2 महीने पहले तक एक आईएएस, एक आईपीएस और जितने ऑफिसर्स थे उनको इस बात का भी पता नहीं था कि वो तेलंगाना में रहेंगे या आंध्र प्रदेश में जाएंगे. लेकिन इन हालात में भी स्टेट चला है,
आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस कोशिश में हमको सबको मिलकर यह कोशिश करना है कि हम सब मिलकर जिस तरीके से भी ताउन कर सकते हैं और जिस तरीके से भी ताकत दे सकते हैं हुकूमत को, हमको देना चाहिए, ताकि हमारा स्टेट मसाइब से निकले, मुसीबतों से निकले, परेशानी से निकले, किसानों की खुदकशी का खात्मा हो और पावर का जो शॉर्टेज है वो भी खत्म हो। और इसके साथ साथ सर, तेलंगाना हैज बीन सब्जेक्ट टू injustice by IAP and the central government must take immediate steps to undo this injustice, sir. And lastly, I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you very much. वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अकबर ओवैसी के सवालात का जवाब देते हुए कहा कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से बातचीत के बाद ही हुकूमत ने इन प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया है। एमपीटीसी प्रोजेक्ट के लिए 16,000 एकड़ अराजी पर काम शुरू हो चुका है, जबकि खम्मम ज़िले के मंगूर के पास 11,000 एकड़ अराजी 6,000 मेगावाट बरखी के लिए हासिल कर ली गई है। वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों ने जो गलतियाँ की हैं, ये हुकूमत उसको नहीं दोहराएगी। అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు చాలా విషయాలు చెప్పినారు అధ్యక్ష। ఆల్మోస్ట్ పవర్ डिमांड में माట్లాడారు వాళ్ళు। अकबर साहब आपने जो कहा है वो हकीकत नहीं है। उनके पास अभी 10,500 इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है और देश में आगे चल के किसी के पास सरप्लस पावर होगा तो वो एक ही राज्य है छत्तीसगढ़, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त कोयला खाना उन्हीं के पास है, उसके बाद ही किसी और के पास हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बेफिक्र रह सकते हैं। और पैसों का बात आपने कहा है, कहाँ से आएंगी? 4,000 तो प्रोड्यूस कर रहा है एनटीपीसी, वो अपना कुछ देख लेंगे, वो महारत्ना कंपनी है, लिहाजा उसके बारे में उतना फिक्र नहीं है। जो 6,000 मेगावाट पावर का बीएचईएल के जरिए हमारा तेलंगाना जन को करना चाहता है, इसके लिए ऑलरेडी टाई अप हो चुका है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन से और आरईसी से। उनसे मेरा कम से कम 4 दफा मीटिंग हो चुका है और जल्द ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर मुझे मिलने वाला है, एमओयू में एंटर हो रहे हैं। और इस पावर एवैक्यूएशन करने के लिए 12,400 करोड़ चाहिए, उसके लिए भी उन्हीं के साथ इंतजाम किया जा रहा है, उसके लिए उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जहां पे हमारे कंपनी को स्टेट गवर्नमेंट गारंटी दे सकता है, वहां हमको आसान से पीएफसी से और आरई से लोन मिलता है। उनसे बात लेने के बाद ही हमने वो काम शुरू किया है, वो बिल्कुल उसमें कोई अड़चन नहीं है, वो आराम से हो जाएगा। और दूसरी बात है जमीन के बारे में आपने कहा, इतना जमीन आप कहां तैयार करेंगे? ऑलरेडी एनटीपीसी जो बनाना है पावर, उनके लिए उनके बल्ब एरिया में जो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं 16,000 मेगावाट के लिए उनके अपने पुराना दिया हुआ जगह में जमीन तैयार है। वो लोग कार्यक्रम शुरू भी कर दिए, काम शुरू भी कर दिए हैं। बाकी जमीन उनके मिलके जो है, जो इससे पहले हम बीपीएल को अलॉट किए थे, उनसे वापस लेके इनको दे रहे हैं। बीपीएल वाले हाईकोर्ट में जाके कोर्ट में स्टे ला लिए हैं, हमने एडवोकेट जनरल को कह दिया है, वो स्टे जल्द से जल्द वेकेट हो जाएगा। जैसा वेकेट हो जाएगा वो जमीन भी एनटीपीसी को दिया जाएगा। और ये 6,000 मेगावाट के बारे में खम्मम जिले में एक 6,000 एकड़ जमीन लेने का सरकार ने तय किया है, जिसमें से 1100 एकड़ ऑलरेडी मनुगुर के पास मिल गया है, गोदावरी के बिल्कुल बगल में, जो कि पानी भी काफी पानी बहता है गोदावरी में, उसका इंतजाम है। और कोत्तागुड़म के बाजू में मनुगुर में और एक जगह जमीन कोशिश जारी है। कुछ ही दिनों में आज ही सुबह मेरा खम्मम कलेक्टर से बात हुआ, कुछ ही दिनों में वो जमीन का भी इंतजाम हो रहा है। और दूसरा, लिफ्ट इरिगेशन इंडस्ट्री के बारे में आपने बात किया है। लिफ्ट इरिगेशन के बारे में आपने जो कहा है सही है। तेलंगाना का जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसके मुताबिक हमको आगे चलकर पूरे अगर हमारे लिफ्ट इरिगेशन स्कीम मुकम्मल हो जाए तो 7,000 मेगावाट पावर उनके लिए चाहिए। तो 7,000 मेगावाट पावर में हमारे पास 2,500 मेगावाट हाइडल पावर है, जिसका मैंने आज जिक्र नहीं किया। जो मैं जिक्र किया था वो सिर्फ थर्मल पावर के बारे में जिक्र किया था। हाइडल पावर इससे हटके है। अगर पानी अच्छा है, भगवान की दया है, तो बारिश अच्छा हुआ है, फ्लड्स है, तो पानी भी मिलता है, साथ ही साथ हमको पावर भी मिलता है। और कुछ पावर उसके साथ जोड़ दिए हाइडल के साथ, तो आराम से हम पानी उठा सकते हैं नदियों से। उसके लिए भी प्रोग्राम तैयार है, इसमें उतना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए जो आपने बात कहा है, जितना आप कह रहे हैं उतना उनके लिए नहीं चाहिए पावर। आज जिस तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से मैनेज कर रहे हैं, कभी कभी उनको काटना भी पड़ रहा है। किसानों के लिए भी हमने काट दिया था,
2 दिन नहीं दिया था पावर उनको, लेकिन अभी लोड डाउन हो गया इसलिए उनको सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आगे चल करके जब हम 20,000 का मार्क पार करेंगे, जितना चाहे इंडस्ट्री आ जाए तेलंगाना में हम लोग दे सकते हैं। और गुज़िश्ता जो गलतियां हुई है उस चीज का नतीजा आज हम भुगत रहे हैं, और आगे चल के ऐसा नहीं होगा। टाइम टू टाइम पावर कैसा जनरेट होना चाहिए, स्टेट का रिक्वायरमेंट क्या होगा, ईयर टू ईयर असेंबली में हम लोग कैसा भी चर्चा करते रहेंगे। आगे जो भी सरकार में रहेगा हम रहे तो हम करेंगे, जो दूसरा रहेगा तो दूसरा करेंगे, लेकिन इसका एक टाइम शेड्यूल पर पाबंदी के साथ अगर किया जाए, प्रोग्राम अमल किया जाए, पिछले नहीं हुआ था, उसी का नतीजा हमको आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन ये गलतियां आगे ना हो, जब तक हमें उसका हम बराबर इख्तियार ले लेंगे और उस तरीके से पावर को बैलेंस करते हुए आगे चलेंगे। आपने जो सुझाव दिया 24 आवर्स पावर टू ऑल स्टेट्स, रेजोल्यूशन का कॉपी अभी सर्कुलेट हुआ है आपके पास, उसको इसमें शामिल नहीं किया गया। अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा अमेंडमेंट करके उसमें जोड़ सकते हैं। जब मैं रेजोल्यूशन पढ़ूंगा उसमें वो भी इंक्लूड कर देते हैं, सबका हाउस का सामने रख के। और जो सुझाव आपने दिए हैं बहुत ही अच्छे दिए, आपको मैं धन्यवाद देता हूं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जहां मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को बेहतरीन तजावीज़ पेश करने पर इजहार तशक्कुर किया, वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनके सवालात के जवाबात तो उर्दू ज़बान में देने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को मुबारकबाद पेश की। अकबर ओवैसी ने कहा कि एक ज़माने के बाद किसी वज़ीर आला ने उर्दू में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को यूं ही जारी रखा जाना चाहिए ताकि तेलंगाना में उर्दू ज़बान फले फूले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए मोहतरम चंद्रशेखर राव साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि एक जमाने के बाद हमने किसी चीफ मिनिस्टर को उर्दू में जवाब देते हुए सुना। इसके लिए भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उर्दू में आपने जवाब दिया, और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से उर्दू में जवाब हमको मिलता रहेगा और तेलंगाना में उर्दू फलेगी और फूलेगी आपकी क़यादत में। साहब शुक्रिया। इसी दौरान वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह किया है कि आइंदा 3 साल तक बरखी 20,000 मेगावाट बरखी पैदा की जाएगी। तेलुगु देशम के रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला के इस दावे पर कहा कि अगर केसीआर इसमें कामयाब हो गए तो उन्हें इसी असेंबली में वो दूध से नहलाएंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो केसीआर को असेंबली में माफ़ी मांगनी होगी। जिस पर वज़ीर आला ने फिर अपने अल्फाज दोहराए और कहा कि 3 साल ख़त्म होने तक 20,000 मेगावाट बरखी पैदा की जाएगी। ऐवान असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जब अपनी तकरीर के दौरान तेलंगाना तहरीक में केसीआर के रोल पर यह कहा कि तमाम ने उनका साथ देते हुए तेलंगाना हासिल किया है, तो तेलुगु देशम अरकान ने शोरगुल शुरू कर दिया। अकबर ओवैसी ने तेलुगु देशम अरकान से मुखातिब होते हुए कहा कि वो ये दावा करें कि क्या चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना लाए हैं या फिर कांग्रेस। मजलिसी फ्लोर लीडर के इस रिमार्क पर साबिक वज़ीर गीता रेड्डी ने कहा कि केसीआर ने सिर्फ एहतजाज किया है, तेलंगाना देने वाली कांग्रेस पार्टी है। जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जमहूरियत में अवाम की ताकत सबसे बड़ी होती है और अवाम ने कांग्रेस और तेलुगु देशम के हक़ में नहीं बल्कि टीआरएस के हक़ में फैसला दिया है। मेरे भाई और मेंबर जो बात कर रहे थे अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने पूरी तरह से कह दिया कि ये क्रेडिट पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव जी को जाता है जो तेलंगाना आया है। अरे आपको ये समझना चाहिए, आप माने ना माने, आप माने ना माने या कोई माने ना माने, हकीकत ही होता है, क्योंकि तेलंगाना दिया जो है वो हमारी सोनिया गांधी ने दिया। इन्होंने एजिटेशन किया होगा 14 साल, मगर अल्टीमेट डिसीजन ऑफ तेलंगाना केम फ्रॉम सोनिया गांधी। आई वांट टू गो ऑन रिकॉर्ड करेक्टिंग दैट। जिसने भी तेलंगाना हासिल किया, जिसने भी तेलंगाना के लिए जिद्दोजहद की, मेरी बात गलत है या सही है कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम, जमहूरियत में आवाम सबसे बड़ी होती है जो फैसला करती है। अब आवाम किसके हक में फैसला करी वो स्टेट जानती है कि आवाम ने तो फैसला यही किया
टीआरएस के हक में। आवाम ने फैसला ना तेलुगु देशम के हक में किया, ना कांग्रेस के हक में किया। तो मैं ये बात हरगिज खते नहीं कहूंगा कि किसने दिया है, आवाम ने तो फैसला कर दिया, जिसने हासिल किया उसको तेलंगाना का इख्तियार दिया और उम्मीद लगाई है कि वो कुछ करेंगे। रियासती असम्बली में उठाए गए मुख्तलिफ सवालात का जवाब देते हुए हुकूमत ने कहा है कि हैदराबाद के जुमला 749 स्कूलों के मिन जुमला 176 स्कूल्स में पीने के पानी की सहूलत नहीं है और 7 स्कूल्स में तो बैतुल खला भी नहीं है। पीने के पानी के लिए आरज़ी इंतजामात किए जा रहे हैं और सर्व शिक्षा अभियान के तहत मुस्तकिल इंतजामात किए जाएंगे। एक और सवाल पर हुकूमत ने कहा कि 104 सर्विस को मुस्तहकम करने और तोसी देने का कोई इरादा नहीं है, अलबत्ता 108 सर्विस को मुस्तकिल करने पर हुकूमत गौर कर रही है। हुकूमत ने एक और सवाल के जवाब में कहा कि तेलुगु ज़बान और तारीख़ी निसाब में तब्दीली लाते हुए तेलंगाना कल्चर और तारीख़ को पेश किया जाएगा। इस सिलसिले में एक माहिरीन की कमेटी तश्कील दी गई है। किसानों के कर्ज़जात की मुआफ़ी के मामले पर हुकूमत के जवाब से गैर मुतमईन होकर वॉकआउट करने के बाद कांग्रेस रुकन असम्बली चन्ना रेड्डी ने कहा कि हुकूमत किसानों के 1 लाख रुपए के कर्ज माफ़ी में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि देहातों में अंग्रेज़ी समझी जाती है या तेलुगु। तेलुगु में 1 लाख रुपए तक के कर्ज माफ़ी की बात की गई थी, लेकिन हुकूमत कर्ज माफ़ी के लिए अब R&B का बहाना बना रही है, RBI का बहाना बना रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 25% ही कर्ज माफ़ किए गए, मज़ीद 17 लाख किसानों के कर्ज माफ़ करने बाकी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने उनके सवालात पर कोई जवाब नहीं दिया है। और टीआरएस ने इल्ज़ाम लगाया है कि तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू के ब्रोकर बन चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए रुकन असम्बली जे कृष्णा राव ने कहा कि रियासत में किसानों की खुदकुशी और बरक़ी बहरान के लिए गुज़िश्ता हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस हकीकत को अदाद शुमार के साथ वाज़ेह तौर पर पेश किया है और ये बताया है कि सीमा आंध्रा वालों ने तेलंगाना के साथ किस तरह से नाइंसाफ़ियाँ की हैं। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने शादी मुबारक स्कीम से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए मदद नामी हेल्पलाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस स्कीम से मुताल्लिक़ किसी भी तरह के सवालात फ़ोन नंबर 24676045 पर किए जा सकते हैं। 24676045। महमूद अली ने बताया कि वो मुस्लिम ख़ानदान जिनकी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए से कम है वो इस स्कीम से इस्तेफ़ादा कर सकता है। शादी मुबारक स्कीम के लिए दरख्वास्तें ऑनलाइन भी दाखिल की जा सकती हैं। इसके अलावा ख्वाहिशमंद अफराद रास्त तौर पर डिस्ट्रिक्ट मिनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर को भी दरख्वास्त दे सकते हैं। इस मौके पर डायरेक्टर मिनॉरिटी वेलफेयर MJ अकबर, प्रोफेसर SA शुकूर और दूसरे मौजूद थे। महकमे बलदिया ने शहर को खूबसूरत बनाने और सड़कों की तोसी के कामों में तेज़ी पैदा करते हुए दबीरपुरे में एक कदीम ढांचे को मुनहदम कर दिया। बलदी हुकाम ने बताया कि अरसा कबल इस सिलसिले में नोटिस भी जारी की गई थी और मुतासरीन को मुआवजा भी अदा कर दिया गया था। बलदी अहदेदारों के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर शेख शकील महमूद भी इस मौके पर मौजूद थे। खिदमात की अंजामदही के दौरान हलाक होने वाले महकमे जंगलात के मुलाजिमीन को जू पार्क में मुनक़िदा एक तकरीब में खिराज पेश किया गया। रियासती वज़ीर जंगलात जोगुर रमना ने जू पार्क में कायम की गई शहीदों की यादगार पर फूल चढ़ाते हुए उन्हें खिराज पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहीद मुलाजिमीन के अफ़राद ख़ानदान की मुमकिना मदद की जाएगी। जू पार्क और महकमे जंगलात के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने दौड़ बराए बेरोज़गार के नाम से एक रैली निकालने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उसे नाकाम बना दिया। एहतजाजी तलबा NCC गेट से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। एहतजाजी तलबा ने इंतबाह दिया कि अगर उनके साथ इंसाफ नहीं किया गया तो 17 नवंबर को चलो असम्बली प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया जाएगा।
آٹو ڈرائیورز کی تنظیموں AITUC اور INTUC نے جیو 108 کی منسوخی کا مطالبہ کرتے ہوئے الفا ہوٹل کے روبرو دھرنا دیا۔ احتجاجی آٹو ڈرائیورز کا کہنا تھا کہ پولیس ای چالان کے ذریعے انہیں ہراساں کر رہی ہے، چالان ادا نہ کرنے پر آٹو ضبط بھی کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اس سلسلے میں توجہ دینے کی اپیل کی۔ الحاجہ حفیظہ بیگم اہلیہ سید خواجہ معین الدین کا انتقال ہو گیا ہے۔ نماز جنازہ 11 نومبر بروز منگل بعد نماز ظہر جامع مسجد برانا شاہ صاحب میں ادا کی جائے گی اور تدفین درگاہ کے احاطے میں ہی عمل میں آئے گی۔ مرحومہ الحاج سید شاکر الدین اور سید امجد الدین کی والدہ تھیں۔ ایک واقعے میں پولیس نے 3 عادی رہزنوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس نے رائے درگم سائبر آباد کے رہنے والے 24 سالہ پی پربھاکر اور خواجہ گوڑا ضلع رنگا ریڈی کے رہنے والے 20 سالہ ڈی ابھیلاش عرف منی اور کے نریش کو اتوار کے دن گرفتار کیا۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ گرفتار شدہ افراد 6 کیسز میں ملوث ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ اس ٹولی کا ایک رکن پی ابھیلاش جوبلی ہلز پولیس حدود میں ڈکیتی کی ایک واردات میں بھی ملوث ہے۔ پولیس نے بتایا کہ مذکورہ افراد مسروقہ اشیاء کو اے شریکانت اور کے چگندر چاری کے حوالے کیا کرتے تھے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے پاس سے 14 تولے کے طلائی زیورات، 2 موٹر سائیکلیں اور ایک سیل فون برآمد کر لیا۔ ایک اور واقعے میں پنجا گٹا پولیس نے جویلری شاپ میں کام کرنے والے 2 عادی سارقوں کو گرفتار کیا ہے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ اس نے فلک نما کے رہنے والے 32 سالہ بی چترو نائک اور ایس دیویندر نائک کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ رشب جیمز واقع پنجا گٹا میں گزشتہ 13 سال سے کام کر رہے تھے۔ انہوں نے قرض کے بوجھ کی وجہ سے طلائی زیورات کا سرقہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ ان دونوں نے ورکشاپ کی کنجیوں سے دروازہ کھول کر زائدس 230 گرام طلائی زیورات کا سرقہ کر لیا، جس میں ہیرے لگے ہوئے تھے۔ پولیس نے 9 نومبر کو ان دونوں کو اس وقت گرفتار کیا جب یہ دونوں دکان سے غیر حاضر تھے۔ پولیس نے تفتیش کی تو ان دونوں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ پولیس نے دونوں کے قبضے سے مسروقہ طلائی زیورات مائع قیمتی ہیرے جواہرات برآمد کر لیے۔ روز کے جھگڑوں اور مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر ونستھلی پورم میں ایک خاتون نے اپنے شرابی شوہر کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ یہ واقعہ ونستھلی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع انجا پور علاقے میں پیش آیا۔ پولیس نے بتایا کہ شرون کمار اور پاؤنی اپنے دونوں بچوں کے ساتھ انجا پور میں رہتے ہیں۔ شرون کمار ضلع ورنگل کے اسٹیشن گھنپور کے ایک پولی ٹیکنک کالج میں لیکچرر کے طور پر کام کیا کرتا تھا۔ وہ روزانہ شراب پی کر گھر آتا اور اپنی بیوی سے جھگڑا کرتا تھا۔ اتوار کی رات بھی وہ شراب پی کر گھر پہنچا اور بیوی سے جھگڑنے لگا۔ غصے سے برہم پاؤنی نے گلا گھونٹ کر شرون کمار کا قتل کر دیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی اور پاؤنی کو حراست میں لے لیا۔ پنجا گٹا پولیس نے ATM سے رقم کا سرقہ کرنے کے الزام میں ممبئی کی ایک 2 رکنی ٹولی کو گرفتار کیا، جبکہ اس ٹولی سے تعلق رکھنے والے 6 افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈی سی پی ویسٹ زون وینکٹیشور راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے ممبئی کے متوطن 37 سالہ حیدر علی سارنگ اور 29 سالہ اے اشوک شٹی کو گرفتار کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ٹولی حیدرآباد میں ATM سے رقم نکالنے کے لیے مختلف الیکٹرانک اشیاء کا استعمال کر کے 32 ATM سے رقم نکال چکی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ڈونگری ممبئی کے رہنے والے حیدر علی عرف اجو اور اشوک شٹی کا تعلق مفرور فیضان فاروق چھتری والا اور اس کے ساتھی سے ہے، جن کا مجرمانہ ریکارڈ ہے۔ وہ نائجیریائی باشندوں کے پاس سے حشیش، کوکین اور دوسرے منشیات خریدا کرتے تھے۔ پولیس نے گرفتار شدہ افراد کے پاس سے ATM سے متعلق کئی الیکٹرانک اشیاء برآمد کی اور مفرور افراد کی تلاش شروع کر دی۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ برقی معاملے میں تلنگانہ کے ساتھ آندھرا حکومت کی ناانصافیوں کے خلاف اسمبلی میں متفقہ قرارداد، کل جماعتی وفد مرکز کو روانہ کرنے کا تیقن۔ آئندہ 3 سال تک 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کی جائے گی، اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا تیقن۔
حکومت 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کے لیے اراضی اور فنڈز کہاں سے لائے گی؟ اکبر اویسی کا سوال۔ شادی مبارک اسکیم پر شعور بیداری کے لیے مدد نامی ہیلپ لائن کا افتتاح۔ اور ونستھلی پورم میں مسلسل ہراسانی سے تنگ آ کر خاتون نے شرابی شوہر کا گلا گھونٹ دیا۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ فی امان اللہ۔